Let us start with chapter number 2, polynomials. So first we have to know the definition of a polynomial. So an algebraic expression is said to be a polynomial if the variable is having the power as a whole number. For example, we have px equal to x3 minus 3x square plus 7. So it is a polynomial because the variable is x and which is having power as 3, which is a whole number. Okay, we have another example, gx, x raised to power half minus 7. So in this algebraic expression, the power is 1 by 2, which is not a whole number. So it is not a polynomial. So this is the basic definition of a polynomial. This is a polynomial, whereas this is not a polynomial. Okay, so first we have types of polynomials based on the number of terms. Okay, so types of polynomials based on number of terms. So if this you have done in class 9th also. So first form is monomial. Monomial is a polynomial which has only one term. Okay, so next is binomial. Binomial is a polynomial which is having two terms. Next is a trinomial, which is again a polynomial which is having three terms. So this is types of polynomials on the basis of number of terms. Okay, so next we have another type of polynomial. Again we have types of polynomials, but this time on the basis of degree. Based on degree. Before that, we must know what do we mean by degree of a polynomial. So degree is basically the highest power of the variable. Whatever variable we are having, the highest power will be the degree. Suppose this is a polynomial, the variable is x here. The x is having highest power as 3. So the degree of this polynomial is 3. So on the basis of degree, we have types of polynomials of degree 1, 2, 3, 4 and so on. So if the degree of the polynomial is 1, so this is called a linear polynomial. If the degree of the polynomial is 2, it is a quadratic polynomial. The degree is 3, it will be a cubic polynomial. And if degree is 4, it will be a biquadratic polynomial. So these are the types of polynomials based on their degree. Let us do examples based on this. So for a monomial, the example is x square. So it is having only one term, so it is a monomial. Okay, so for binomial, we can have x square plus 7 because it is having two terms, so it is a binomial. And for a trinomial, we can have x square plus 7x minus 2. So this is a trinomial because it is having three terms. Now you can see that the degree of all these polynomials, the highest power of the variable is 2. So degree of all these polynomials is 2. So it is a quadratic polynomial. All these are quadratic polynomials. So for a quadratic polynomial, we can write this example. For a linear polynomial, it will be of the form 2x plus 7. Cubic polynomial will be of the form x cube minus 3x square plus 7x minus 8. It does not depend on the number of terms. It depends on the highest power of the variable. The highest power of the variable is 3 here, so it is a cubic polynomial. And similarly, a biquadratic polynomial will have the highest power of the variable as 4. So it is a biquadratic polynomial. Next we have the meaning of 0 of a polynomial. This you have done in class 9th also. So a number x equal to a is a 0 of px if pa equal to 0. So the value of x which is making this polynomial as 0 is said to be the 0 of that particular polynomial. For example, we have a polynomial px x minus 1. So if we put x equal to 1 in this polynomial, the answer will be 0. So we can say that x equal to 1 is a 0 of x minus 1. After all these basics, let us do the first topic of class 10th. So the first topic of class 10th is geometrical meaning of zeros of a polynomial. Let us see what is the geometrical meaning of the zeros. Suppose we have a polynomial px as x plus 1. We can write it like y equal to x plus 1. So if we draw the graph of this polynomial, we will have this you have done in class 9th. If we put x as 0, so y will be 1,
and if we put y as 0, so y को 0 put करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. So if we draw the graph of this, the graph will be like this. So on putting x as 0, y is coming 0, 1 will be here, and on putting x as -1, y is coming out to be 0. So this is the line, this is the graph of this equation, this polynomial y equal to x plus 1. Okay, so this is x-axis and this is y-axis. So you can see that this polynomial y equal to x plus 1 is cutting the x-axis at a point -1, 0. So we can say that -1 is a 0 of this particular polynomial, and this you can do it by actual calculation. If you put x को अगर हम -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा -1 plus 1, which is coming out to be 0. So we can say that -1 is a 0 of this particular polynomial, and you can also verify from the graph that it is cutting the x-axis at exactly 1 point. So whatever are the number of points, that will be the zeros of the particular polynomial. Suppose we have a polynomial which is cutting the x-axis at 2 points. It is cutting at 2 points. So number of zeros will be 2. So we can identify from the graph that how many zeros the polynomial is having. So by seeing the graph, we can identify the number of zeros. Now suppose a polynomial is not cutting the x-axis at all. It is not touching the x-axis at any point. Suppose the graph is like this. So in that case, what will be the number of zeros? So in that case, because it is not cutting the x-axis at all, so in this case the number of zeros will be 0. It will not have any 0 at all, okay? Because it is not cutting the x-axis at any point. So the general form of a quadratic polynomial is given by px equal to ax square plus bx plus c. Okay, this is the general form of a quadratic polynomial. Now why it is a quadratic polynomial? You can see that the degree of this polynomial is 2. The highest power, the variable is x. x की highest power क्या आ रही है 2. तो डिग्री 2 आ गई. So that is why it is a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अच्छा, अब अगर मान लो a की वैल्यू इसमें 0, a b c यहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में क्या बन जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर b 0 हो जाएगा तब भी क्वाड्रेटिक रहेगा, c 0 हो जाएगा तब भी क्वाड्रेटिक रहेगा, बट अगर a 0 हो गया तो ये बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अगर a 0 नहीं होगा तभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा. ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. अच्छा, अब जीरोस को हम डिनोट करेंगे पहले. ठीक है, जीरोस के लिए कुछ ना कुछ सिंबल लेट कर लेते हैं. तो लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा हमने जीरोस ले लिए. अच्छा, आगे रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में. अब कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या है हमारे पास, ए बी और सी. तो इन अल्फा बीटा और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हम ये देख लेते हैं. ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो. सम क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस है तो इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ ए. ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा दो जीरो से, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, so this is the relationship between the zeros of a polynomial and its coefficients. Now suppose we want to find a polynomial whose zeros are given to us. ठीक है, alpha and beta will be given to us. Either this will be given or sum and product will be given. ठीक है, या तो ये दोनों जीरोस गिवन होएंगे या तो सम और प्रोडक्ट गिवन होएंगे. तो इन दोनों में से कुछ भी गिवन है तो हमें पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है ये, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग a polynomial whose zeros are given to us. Either zeros are given to us or sum and product of those zeros are given to us. Okay, so now let us do questions based on this. So we have a question based on this in exercise 2.2. I am reading the question from book. You can also see the book and read the question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So this is given. Okay, first part I am doing. So px, I am naming the polynomial as px. Why we are naming it px, because the variable is x here. So px is this.
So first we have to find the zeros of the polynomial. So for finding zeros, you know, in class 9th also you have done this, we put px equal to 0. तो क्या आ जाएगा x square minus 2x minus 8 equal to zeros. Now what is the how to solve this? In order to solve this, you know by class 9th only that we can solve it by using factorization method. ठीक है, middle term splitting, you can also say middle term splitting. 8 into 1 आ गया 8, तो 8 के हमें फैक्टर्स करने हैं. 8 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 4 2 2 2 1 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब 2 2 2. सो 8 के साथ आ रहा है माइनस का साइन. सो वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली 8 आ जाए. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि 4 और 2 वो दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 भी आ रहा है और माइनस करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा और इसको प्लस. ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. ठीक है, जस्ट टेक कॉमन, x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4, अंदर 2 बचा, क्या बचा x माइनस 4 अगेन इक्वल टू 0. ओके, सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो दोनों को जब हम इंडिविजुअली इक्वल करेंगे जीरो के, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो तो इंडिविजुअली इक्वल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई -2, x की एक और वैल्यू आ गई 4. तो पहला जीरो हमारे पास हो गया -2 और दूसरा जीरो कितना हो गया 4. ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस आ गए. अच्छा, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है सम. तो सम कैसे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा कितना है हमारे पास -2, बीटा कितना है 4, कितना आ गया सम 2. अच्छा, इसको किसके इक्वल शो करना होता है हमें माइनस बी अपॉन ए के. अच्छा, इधर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ए क्या है. ए क्या है हमारे पास 1, बी कितना है -2 एंड सी इज 8. ए बी सी है हमारे पास, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. ध्यान से देखो, माइनस बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया है 2. ऐसी सी. अच्छा, ऐसी इसके बाद हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे सिंबल पी. सम के लिए हमने क्या यूज किया था एस. ठीक है, प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, दैट विल बी -2 और 4, कितना आएगा प्रोडक्ट इनका -8. अच्छा, सी अपॉन ए निकाल लो अब. सी, सो दे बोथ आर इक्वल, ऑल्सो दीज टू आर इक्वल. ये इससे हमारे पास वेरीफाई हो गया कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू this 2 and product of zeros is equal to -8. तो हमने वेरीफाई क्या कर दिया, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, इन जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर दिया. ठीक है, नाउ इन होमवर्क यू कैन डू, और राइट नाउ ऑल्सो while watching the video you can do 2.2 question number 2.2 first question, third part and sixth part. ठीक है, third, sixth and second also you can do. These three parts you can do. Next we have another question. So this question is pu is equal to 4u square plus 8u. अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे इसका नाम pu क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ था हमें वो x की जगह पे u था. ठीक है, सो लेट अस फॉलो द सेम प्रोसीजर विच लाइक वी डिड इन लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. 4u square plus 8u is equal to आ गया 0, 4u कॉमन, सो u प्लस 2 इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिडल टर्म ही नहीं आ रही, कोई दो ही टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म नहीं है. तब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ना हो दैट डजंट मैटर, ये वाली टर्म जरूर होनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हमने कॉमन लेके सिंपली कर दिया 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक वैल्यू u की आ गई 0, अदर वन इज -2. सो अल्फा इज 0, बीटा इज -2. So again we follow the same procedure. S is alpha plus beta, that will be 0 plus -2, that will be -2 and minus b upon a. माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा -b, b कितना है 8 और अपॉन में a कितना है 4, तो ये भी कितना आ जाएगा -2. ऐसे ही हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट. p क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2, सो प्रोडक्ट विल बी 0. एंड व्हाट अबाउट c अपॉन ए. अच्छा, c कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म 0, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों इक्वल आ गए. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, pt इज इक्वल टू, इट इज गिवन दैट pt इज इक्वल टू t स्क्वायर -15. तो ये हमें गिवन है, pt इज t स्क्वायर -15. अगेन वेरिएबल t है, तो इसलिए हमने pt लिख लिया इसको. फॉलो द सेम प्रोसीजर, pt इक्वल टू 0, t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0. अब दो ऑप्शन है यहाँ पे. पहला ऑप्शन क्या है कि इसको हम 15 को क्या लिख सकते हैं
√15 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b² की, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, 9th क्लास में आपने करा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर से हमारे पास आ गया t की वैल्यू -√15 और सेकेंड फैक्टर से t माइनस √15 इक्वल टू 0 से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √15। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, इसी स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, t² इज इक्वल टू 15, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो t की दो वैल्यूज क्या आ जाएगी प्लस माइनस √15। बेटा ध्यान रखना जब भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव भी आएगी माइनस भी। क्यों? क्योंकि √15 का पॉजिटिव √15 का स्क्वायर भी 15 होता है और माइनस √15 का स्क्वायर भी 15 होता है, तो वी हैव टू टेक बोथ द वैल्यूज। तो ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, अल्फा आ गया हमारे पास -√15 और बीटा कितना आ गया हमारे पास √15, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम। एस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए, देखो इसमें कोई टी वाला कोफिशिएंट वाली कोई टर्म नहीं है ना, तो वो 0 ही है हमारे पास, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15। सो वी जस्ट पुट द वैल्यूज, -15 आ गया, सी अपॉन ए निकालो, सी कितना है -15 है सी, ठीक है, और ए कितना है 1, तो ये आ गया -15। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गए, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार फिर से हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x² माइनस SX प्लस बी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमें पॉलिनोमियल निकालना होगा जिसके या तो जीरोस गिवन होएंगे या तो उसका सम और प्रोडक्ट गिवन होएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 अगेन, एंड आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। ध्यान से, सम और प्रोडक्ट गिवन है, जीरोस गिवन नहीं है, सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन है। तो पहले वाला सम है, जैसे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं √2, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास 1/3। तो s और p हमें गिवन है, वी नीड टू फाइंड द पॉलिनोमियल। तो क्या आएगा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, gx का x² माइनस SX प्लस p। ये था, मैंने बताया था फॉर्मूला, x² को सेम रख दो, -√2x प्लस 1/3। देखो ये भी करेक्ट आंसर है। अगर तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 एलसीएम, तो क्या आएगा ऊपर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। या तो तुम इसी इधर ही छोड़ दो आंसर, और दूसरा तरीका क्या है कि तुम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आएगा हमारा, जो एलसीएम लेने के बाद जो आया ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर को स्किप कर दो, जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ वो लिख दो, दैट इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। बोथ द आंसर आर करेक्ट, चाहे तुम यहाँ पे छोड़ दो चाहे ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू मोर पार्ट्स, सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड वंस अगेन। सो एस दिया हुआ है हमें -1/4, पी दिया हुआ है हमें 1/4। तो कैसे निकालेंगे बताओ, gx, आई होप एवरीवन कैन डू दिस नाउ। x² माइनस SX प्लस p, सेम प्रोसीजर, क्या आ जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस p इज 1/4। दिस, और एलसीएम लेने के बाद सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख देंगे, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर पार्ट, gx इक्वल टू, अच्छा s इज 4, p इज 1, so gx will be equal to what, gx same formula, x² minus sx plus p, so you can do all these parts now, x² minus 4x plus p is 1, okay. So this is the required polynomial, no need to take LCM in this part, okay. For the next exercise, let us first revise division algorithm which you have done in class 9th also, division algorithm. So this you have done in chapter 1 also for numbers, now we are doing it for polynomials once again. You did it in class 9th also. Dividend, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड हो गया, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, जो है इसको बोलेंगे हम क्वोशिएंट, और जो बचा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। सो डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। याद करने के लिए सिंपल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। इन एक्सरसाइज 2.3, फर्स्ट क्वेश्चन इज
divide the polynomials px by the polynomial gx and then find the quotient and remainder. ठीक है, quotient remainder find करना है, and it is we are doing second part. So let us do second part of it. Rest of the parts you can do. X4 minus 3x square plus 4x minus plus 5. Okay, and gx is given in this form, x square plus 1 minus x. देखो अब ये वाली फॉर्म नॉर्मल फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए, एक्स की, लेकिन इसके बाद कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर के बाद आ रही है +1 एंड देन इट इज -x. तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे लॉन्ग डिवीजन करने से पहले. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा, x4 जो डिविडेंड है हमारा, ठीक है, वो सेम ही है. अच्छा, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हम इनकॉर्पोरेट इधर ही कर लेंगे, देख लेंगे कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है. अच्छा, अब एक्स स्क्वायर है इधर लाने के लिए फर्स्ट स्टेप यू नो, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4, ये 9th वाला ही सेम प्रोसीजर है, माइनस एक्स क्यूब. अच्छा, माइनस एक्स क्यूब को हम यहाँ पे लिख देते हैं. रीज़न क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर की टर्म. 1 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस, दिस विल कैंसिल, ये तो आ जाएगा -4x². अच्छा, इधर से माइनस का प्लस हो चुका है, इसको इधर लिख लेते हैं एक्स क्यूब, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं बाकी दोनों टर्म्स, +4x + 5. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू गेट एक्स क्यूब हियर एंड हियर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर. सो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, अगेन इट विल कैंसिल, इट विल बी -3x² प्लस 3x प्लस 5. अब इसको इधर -3x² लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय -3 you will get -3x² plus 3x minus 3. Change the sign. Now you can see that this is cancelling and this is also cancelling, but 5 plus 3 is 8. This is not cancelling. ठीक है, 5 plus 3 8 आ गया. तो क्वोशिएंट हमारे पास कितना है, क्वोशिएंट आ गया हमारे पास x² plus x minus 3 and remainder is equal to 8. ठीक है, this we need to find. तो क्वेश्चन हमने निकाल दिया और रिमाइंडर भी निकाल दिया.